Hello, Abdur. Welcome to Mark Darshan platform. Please Good, introduce good, yourself for so that we can proceed further for your post-gate guidance program. good evening, sir. I'm Abdul Rahman Raja. Currently, I'm working in IT industry. Like from five years, I'm working in IT industry from 2019. Like I passed out in 2019 BTech. Then I give to 2024 GATE exam. In that, I have scored 682 ECE general category. So I'm looking for like what should I do next? For that, So, I'm looking which for year gate score you have? 24, 24. Okay. And how mhm, much is your gate score? 684. 82. 82. Okay. So, what is your interest? In which domain you want to pursue further? You are interested in PhD or MS or just placement? Uh, My major interest is in VLSI MTech. Okay. That means you are mainly focused on placement, right? Yeah, placement. So, what's your category? General. General. Okay. Mhm. So, for you can have you applied in ISC Bangalore? No, I don't want to go in Bangalore. That is why I have not applied there. Okay, okay, okay. Because So currently I'm in Bangalore only. That is why I don't want to live there in Bangalore. okay, okay, okay. So Mhm. is there any location preference of yours? Yeah, majorly in North, maybe Delhi. Guwahati is also fine because my hometown is near Guwahati. So Okay. that is also So you can try not. for VLSI in IT Guwahati, right? You can, Yeah. yeah, you can Mhm. try. You can opt for IT. You just write down the names of the colleges and the branches which are there. Okay. IIT Guwahati, IT Guwahati VLSI, VLSI, IIT Hyderabad VLSI. Hyderabad. Yeah. Are you interested in going there or not? South place I don't want to Okay, okay, go. leave it, leave it, leave it, leave it. No issue, no issue. I can understand, no issue. Okay. So let's come with then start from IIT Bombay. Is it okay? Bombay will work. Yeah, yeah, Bombay is one. So in Bombay, you can have the preference of first integrated circuit and system. Integrated circuit, okay. Yeah, After that, system, solid state devices, solid state devices, then control and computing, control and computing. and then Okay. and the rest is your choice, whatever you want, out of your interest. See, branches are. How how Yeah, many preferences we can give in Bombay? I think 10 options are there. Just check Okay, it once. okay, okay. Total in that you can give a preference of interdisciplinary branches also. There is no issue. Uh, Mhm. if you are interested But in any, okay. please. But my preference is only VLSI. If I'll not get any VLSI, I'll not go to MTech. That is Okay, my thinking. okay. If it's means you want sure shot VLSI, that's it, right? Mhm. So you apply in IT Guwahati, VLSI, and MPRF. MPRF is microelectronics and photonics branch. It is just means it's totally related to VLSI. Okay. Okay. So you In can apply Guwahati in these two. only. IT Guwahati, VLSI, and MPRF. Mhm. Uh, Okay. for safer area, if you want VLSI, try for KGP also, but chances are little less. But you should fill KG. the form because sometimes what happens that if you apply for two branches, suppose that, and you got Mhm. the second branch in third round, and then you opt for internal application, then you might get VLSI in fifth round or sixth round, additional round. Okay. Okay. But if you want that, no, you want sure shot VLSI only, then you go with IT Guwahati. Okay. In IIT Guwahati, it is sure shot, but in KGB, like there is chance or not. There is a chance in KGP and yeah, Roorkee Mhm. also you can apply. Okay. Okay. So in KGB only VLSI, like if I want to give another preferences below that, what it will be? See, you told that you want only VLSI. That's why I told you. That is fine, but while filling the form, we need to give more Ha preferences. ha. That Sure, 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 sure. So after that, after VLSI, you can opt for VIS, Visual Intelligence System.
Okay. Then you can opt for SPML. SPML. Then you can one there is school GS Sanyal. In that there is wireless communication and networks. Wireless communication. Huh. Yeah. Okay. And you can apply in RF and microwave also if you have interest. And one more branch, instrumentation and integrated circuit electronics. Sorry, Instrument. integrated Okay. electronics. This instrumentation and integrated electronics is also aligned towards VLSI. Means you can Mhm. create VLSI profile from that. Okay. See, the main thing is that irrespective of branch, what you learn in the 2 year course, that is main important. Some because you can take electives from VLSI branch also. Mhm. Suppose that you are having in branch is something else like communication or something power, microelectronics and photonics. But you can take electives like in IIT Guwahati, MPRF gate score goes around 50 to 70 gate score difference is there from VLSI. But the course structure is almost similar. Only 2 3 courses are different. MPRF and VLSI. Yeah, in IIT Guwahati. Okay. So One query is there. हाँ प्लीज से. Whether it is worth, लेकिन हिंदी में सवाल पूछ हाँ लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. कि क्योंकि मेरा जॉब है और डिसेंट सैलरी है, तो आप अगर आप सीटीसी बता सकते हो खुल के तो कोई इशू नहीं. कोई. अप्रोक्स 10। ओके ओके हाँ. हाँ, तो ये करना वर्थ है कि 2 साल लगाए कि छोड़ दे, क्योंकि मेरा मेन आप किस डोमेन में वर्क कर रहे हो, आप मेरे को भी ये बताओ. आईटी डोमेन में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सॉफ्टवेयर डेवलपर. हम्म, तो देखिए ऐसा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का तो अभी क्या ग्रोथ रहेगा क्या नहीं रहेगा सबको पता है, कुछ भी अभी मतलब पूरा अनसर्टेन है. पर आप देख रहे हो बीएलएसआई डोमेन में अभी मतलब इंडिया बहुत आगे, मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी ला रहा है हमारे यहाँ धुलेरा गुजरात में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लांट बैठने वाला है. और जब तक हम्म, आप पास आउट होगे तब तक वो प्लांट पूरा रन करने लगेगा 2026 तक. उनका टारगेट यही है 2026 का. और मैं अगर बताऊं आईटी गुवाहाटी हम्म। का तो ये रिवील नहीं करना चाहिए, पर मतलब सीटीसी जो रहता है वो 30 प्लस, मतलब ऐसे मैं बता सकता हूँ. तो 2 साल लगाना सही है। हाँ अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हो तो आप बेस्ट है वीएलएसआई से एमटेक करना. People who are serving as IES, they have left IES and joined VLSI. मेन मेरा वही था कि मतलब हमको तो अभी जॉब ही कंटिन्यू करना था, लेकिन मतलब डोमेन चेंज करना था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, इसलिए हमने गेट दिया था कि ये गेट के थ्रू हमारा अगर इफ देयर इज अ चांस इन पीएसयू आई विल गो फॉर पीएसयू, अदरवाइज आई विल गो फॉर एमटेक। तो सो मैं सोच रहा था कि आपको पीएसयू में इंटरेस्ट है. हाँ, मेरा मेन वो है कि अगर पीएसयू मिल जाए तो हम सब छोड़ छाड़ के चले जाए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हो. आपसे मैं पूछा स्टार्टिंग में, आप इंटरेस्ट बताओ तो आपने बस VLSI नहीं बोला. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. इंटरेस्ट तो मतलब आप एमटेक के लिए मैं सोचा आप पूछे। अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं. तो आपका रैंक कितना आ रहा है इस बार? मेरा रैंक 359 है। एनटीपीसी अगर आती है और कोल इंडिया दोनों तो हो जाएगा. हम्म, ठीक है. उसी के भरोसे हम बैठे हुए हाँ हैं। हो जाएगा ठीक है. बस वही है, मेडिकल मेडिकल में कोई मतलब कलर बाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है. नहीं, मेडिकली फिट है, वो सब दिक्कत और नहीं है। दामोदर वैली भी हो सके तो आएगा, तो डीवीसी में भी चांसेस है पूरा होने का. तो यही मैं सोचा था कि एमटेक इधर परस्यू करें, अगर कुछ आया ऑब्वियसली वैकेंसी तो। ऑब्वियसली लोग यही करते हैं, एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि वैकेंसी जो भी प्लेसेस की होती है वो बहुत एंड एंड पे आती है, तब तक सारी जगह पे एडमिशन क्लोज हो जाता है. आपके पास जॉब है पर लोगों के पास जॉब नहीं होता है, तो वो लोग अपना साल बर्बाद नहीं करके एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं. तो इसमें एक ये भी क्वेरी है, मान लीजिए कि मैं एमटेक नहीं किया, जो जॉब कर रहा हूँ उसी में कंटिन्यू करूँ, लेकिन जब उसका कोई पीएसयू का कुछ आया, अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि मेरे जॉब में 3 महीना नोटिस पीरियड है, तो वो सर्व करने का वो टाइम देगा। अभी करेंटली बच्चों ने जो एनटीपीसी में ज्वाइन करा था उनका हम्म, उनका आया था ज्वाइनिंग, उन्होंने कुछ कुछ एक्सटेंशन लगा के उन्होंने 1 महीना 2 महीने का एक्सटेंड कराया था. तो ये डिपेंड करता है आपके एचआर पे भी, वो अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हम्म, जो एनटीपीसी में है. समझ रहे हो आप मेरी बात? सबका हाँ। मेंटेलिटी एक जैसा नहीं होता है, पर ये चीज होती है, हुई है, मेरे सामने हुई है. मैं कुछ ऐसा सुना था, लीव विदाउट पे करके कुछ होता है, वो करके कुछ लोग चले जाते हैं, तो वैसा कुछ प्रोसेस है क्या?
लीव विदाउट पे तो वो एमटेक वगैरह के लिए होता है शायद, जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होते हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग लीव विदाउट पे करके कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं। कौन सा कंपनी आप छोड़ने की बात कर रहे हो आप, एनटीपीसी या फिर वो आपका जो नहीं प्राइवेट? नहीं, मेरा मेरा जो मतलब प्राइवेट का कर रहा हूँ मैं। वो तो आपके ऊपर है ना, आपका उस कंपनी में क्या है, वो तो मैं यहाँ से कैसे बता सकता हूँ। मैं तो आपको बस एनटीपीसी का बता रहा हूँ, जो बच्चों ने खुद से अप्लाई करा था, कि मतलब हम्म। उन्हें चाहिए था 1-2 महीने का टाइम चाहिए था, क्योंकि उनका वहाँ पे एमटेक चल रहा था यहाँ पे मेरे साथ ही, तो उनको एग्जाम वगैरह देना था, तो हुआ था वो। हम्म, हम्म। तो अगर एमटेक करना हो तो आईआईटी गुवाहाटी को प्रेफरेंस में वीएलएसआई और एमआरएफ, एमपीआरएफ, हाँ। और बॉम्बे को में भी डाल देंगे, वो आईसीएस हाँ। और सॉलिड स्टेट और कंट्रोल वगैरह वगैरह। हाँ। फिर और केजीपी तीसरा, और हम्म। रुड़की। हाँ, ये और चार दिल्ली में में ये भी आप बोलते डाल हैं। सकते हो। दिल्ली में आप बेलेसाइड टूल डिजाइन है, और एक टेक्नोलॉजी है, वो भी डाल सकते, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करके है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, वो भी आप डाल सकते हो। टेलीकॉम, क्या बोले सर, टेलीकॉम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ओके। कानपुर में भी एमबीएलएसआई और कंट्रोल एंड ऑटोमेशन डाल देना। कानपुर में भी, हाँ। ओके। सी, कोप के लास्ट राउंड में आपके पास ज्यादा ऑफर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। नहीं मैं इस बार कोप का ब्रोचर भी पढ़ा था, उसमें ये था कि जो एमटेक वाले कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी वगैरह, और जो पीएसयू वगैरह जो कोप के थ्रू लेगा, हाँ। तो उसमें ये नहीं समझ आ रहा, जैसे कोप में ये है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कोई भी हाँ। सीट, तो उसके बाद पीएसयू से हम कोप, पीएसयू का कोप से नहीं आता भाई, सही बताओ तो पीएसयू का कोप से कुछ नहीं रहता, वैसा सबका अपना पर्सनल पर्सनल मेल आता है भाई। वो होता है, लेकिन इस बार मैं पढ़ा था उसके ब्रोचर में ऐसा कुछ हर लिखा साल था वही कि लिखा रहता है, हर साल वही लिखा अच्छा, रहता है। हाँ, आप इस तो बार पढ़ो इसलिए आपको इस बार दिख रहा है। हाँ इसी बार मैं पढ़ा ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी, जैसे कोई पता इशू चला नहीं, फिर से कोई बाहर इशू कर नहीं। दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो फिर ठीक है, मतलब और कोई एक्सेप्ट डाउट कर। आपका? नहीं नहीं सर, बहुत कुछ शुक्रिया आपका। आप कुछ बोलना चाहे, अगर चाहते हो तो आप बोल सकते हो, इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कैसा मतलब हेल्प मिल रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड हो, नहीं क्या हो? नहीं सेटिस्फाई तो हम है कि पर्सनल डाउट, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सनल डाउट होता है, उसके हिसाब से गाइडेंस देना ये ज्यादा सही है, क्योंकि इन जनरल अगर देंगे तो इन जनरल में बहुत कुछ टैकल हम्म। नहीं होता, हाँ। इसलिए दैट इज वेरी गुड दैट यू आर गिविंग पर्सनल गाइडेंस वन एंड वन। एंड पर्सनली आपने बताया भी हमको कि हमको किस जगह अप्लाई करना है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सा पैसा बचेगा, बहुत सा फॉर्म नहीं भरूंगा मैं। अगर और आपको श्योर शॉट चाहिए तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप आईटी गुवाहाटी की तरफ जा सकते हो, 2 ब्रांच। हाँ, इस पे तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मेरे घर के बगल में भी है, तो इसलिए मैं गुवाहाटी सोच रहा हूँ। यहाँ पर वीएलएसआई वर्थ है ना, क्योंकि मैं अपने जॉब से ही बस कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मेरे जॉब से अपग्रेड हो जाऊंगा तो वीएलएसआई लूँ, नहीं तो सी, अगर कंपेयर आप नहीं अपना करूँगा। जॉब कंटिन्यू करते हो, आप आपका पैकेज मान लो अभी 10 लाख का है, ठीक है, आपको फिफ्टी हम्म, परसेंट इंक्रीमेंट मिलता है, 15 लाख होता है। फिर आपको हम्म, 50% इंक्रीमेंट मिलता है, मान लीजिए 1 साल बाद, तो कितना होता है? 22 लाख के आसपास पहुंचते हो आप। पर ये हाँ कब होता है? जब आप बेस्ट परफॉर्म करोगे, तो बेस्टेस्ट परफॉर्म करोगे तब। हाँ, आप वो तो समझ रहे हो इस चीज? और हाँ, अभी तो सिनेरियो है, इतना हाइक मिलना पॉसिबल है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हम्म, तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर लो, और आपके पास एज एक्सपीरियंस भी है, तो आपको बहुत चीजें इजी होंगी प्लेसमेंट के टाइम बीएलएसआई में, पहले चीज। हम्म, दूसरी चीज, आपके पास इधर पीएसयू का भी चांसेस है, तो अगर पीएसयू आ गया तो फिर आप आराम से उधर ही चले जाओगे। ठीक। पीएसयू के लिए थोड़ा एक्टिव हाँ। है। हेलो। गौरव सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे, कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करना चाहते हो तो? हाँ, प्लेटफॉर्म के बारे, क्योंकि पोस्ट गेट गाइडेंस बहुत कम जगह है, सब लोग लाखों रुपया लगा के गेट तक दे देते हैं, उसके बाद से क्या होता है उसके बाद किसी को पता नहीं होता, तो डेडिकेटेड पोस्ट गेट गाइडेंस लाना ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को गाइडेंस मिल जाता है कि सही राह में चले। अब इतना स्कोर लगे उसका क्या करना है वो पता ही नहीं होता, तो सही जगह अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो आपने बताया तो हमको बड़ी खुशी है, आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे, बाय। नेक्स्ट, जिनका ईसी से गेट स्कोर 650 के अराउंड हो। सर मेरा स्कोर 702 है। अच्छा, हाँ हाँ, आपका नाम था, मैंने देखा था एक्सेल में, हाँ भाई। आप
Yes, sir. कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। Yes, sir. Good evening, sir. हेलो अर्पित, वेलकम टू मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म Yes, फॉर sir. सर वो to get रिकॉर्डिंग guidance. स्टॉप कर दी थी ना?